Good morning, children. Welcome back to your history class. And before going to our next topic, let's have a quick revision of the points whatever we have discussed earlier in our lecture. Children, in previous lecture, we have discussed about the participation of different social groups in the civil disobedience movement. And in this reference, we have discussed about the participation of rich peasants and poor peasants in the countryside in the civil disobedience movement, as well as we have also discussed about the participation of business class in the civil disobedience movement. Also, we have discussed what were the reasons behind their participation in the movement, and also along with these points, we have also discussed about what did Swaraj mean to them, and how they have derived the meaning of Swaraj in their own way, and what were the ways of their participation in the civil disobedience movement. So children, we have discussed all these points in our earlier previous lecture. तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है ये पढ़ा था कि भारत के विभिन्न सामाजिक समूह जो हैं वो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या योगदान रहा है, उनकी क्या भूमिका थी, और इस संदर्भ में हमने जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले संपन्न किसान और गरीब किसान के योगदानों के बारे में पढ़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही थी इस आंदोलन में, और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा कि उनके लिए स्वराज के क्या माने थे और उन्होंने स्वराज को किस तरीके से लिया। हमने इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ ये भी पढ़ी कि हमने व्यावसायिक वर्ग के योगदान के बारे में भी पढ़ा कि उनका क्या इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन था, योगदान था, उनकी क्या भूमिका थी और उनके लिए स्वराज के क्या माने थे। तो जो है वो विभिन्न सामाजिक समूहों का क्या योगदान था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, इस संदर्भ में हमने इन दो समूहों के योगदानों के बारे में पढ़ा था। So children, but in today's lecture we are going to study in the reference of this topic about the participation of industrial workers, and also we will study about the participation of women in the civil disobedience movement. Children, along with these two points, we will also come to know about the reason why did the industrial workers did not participate in large numbers in the civil disobedience movement, and also we will come to know about the Gandhiji's views on the participation of women in the civil disobedience movement. And along with these points, we will also discuss about the participation of. Also, we will also discuss about that why and how women responded to the call of Gandhiji for Salt March in 1930, and also what were their ways to take their ways in the participation of civil disobedience movement. यानी बच्चों, कहने का मतलब ये कि आज के हम लेक्चर में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे हमने कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरीके से जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया। तो इस संदर्भ में जो है आज हम औद्योगिक श्रमिक वर्ग के योगदान के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही महिलाओं के योगदान के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन दोनों वर्गों ने किस तरीके से इस आंदोलन में भूमिका निभाई। साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके लिए स्वराज के क्या माने थे, इन्होंने स्वराज को किस तरीके से लिया, और हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि हम उस कारण के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्यों श्रमिक जो ये औद्योगिक श्रमिक वर्ग था वो उसकी संख्या क्यों कम रही, वो बढ़ चढ़ कर उसने जो है क्यों नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया। और हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं के योगदान पर गांधी जी के क्या विचार थे, उनकी क्या सोच थी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि महिलाओं ने किस तरीके से गांधी जी के सॉल्ट यानी नमक यात्रा के आह्वान पर उन्होंने किस तरीके से इस आह्वान को लिया, सुना, और किस तरीके से उन्होंने उनमें उसका योगदान कंट्रीब्यूशन रहा, और उनकी क्या अपने तरीके थे इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन या योगदान या भूमिका निभाने की। सो चिल्ड्रन, वी विल स्टडी all these points in today's lecture. So children, let's start the explanation of the today's topic.
Children, in the participation of industrial working class or workers in civil disobedience movement, we will first discuss the reason why the industrial workers did not participate in large number in the movement. कहने का मतलब है कि इस संदर्भ में यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के मजदूरों के योगदान के संदर्भ में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था उसने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में क्यों नहीं हिस्सा लिया. सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स. The first point is, except in the Nagpur region, the industrial working class did not participate in large number because why? There were some reasons. The first reason was the industrialists came closer to the Congress, the workers kept aloof. कहने का मतलब ये है कि जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा यानी नागपुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में जो श्रमिक मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया. क्योंकि वाई द फर्स्ट रीज़न ये था कि उद्योगपति जो थे वो कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, जिसकी वजह से मजदूर जो थे वो कांग्रेस से अलग होने लगे थे. यानी जो है वो इंडस्ट्री जो थे वो कांग्रेस के क्लोज हो रहे थे और मजदूर उससे सेपरेट हो रहे थे. द सेकेंड रीज़न वॉज द कांग्रेस वॉज नॉट विलिंग टू include the workers' demand as part of the program of struggle for fear of alienating the industrialist. कहने का मतलब है कि कांग्रेस मजदूर की मांगों को अपने कार्यक्रम में या अपने अभियान में शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उद्योगपति जो है उनसे नाराज़ हो जाएंगे. यानी कहने का मतलब है कि वो जो है वो पूरी तरीके से वो समर्थन देने में हिचकिचा रही थी मजदूर वर्ग को. बट इन स्पाइट ऑफ दिस workers in spite of this, the worker adopted some ideas of the Gandhian programs like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working condition. मतलब कहने का ये मतलब है कि इन सब जो है इन सब चीज़ों के अलावा जो इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो ये श्रमिक वर्कर्स थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और ख़राब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया था. यानी उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनका जो है वो वेतन जो है वो बढ़ाया जाए और जो है उनकी जो कार्य स्थितियां हैं जहाँ पे वो काम करते हैं उसकी जो सिचुएशन, उसकी कंडीशन, उसकी स्थितियों को, उसकी परिस्थितियों को सुधारा जाए. उनके लिए स्वराज का मतलब यही था. सो फॉर देम रिवोल्ट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन वॉज द स्वराज. तो सो देयर वर सम डिमांड्स ऑल्सो ऑफ दोज वर्कर्स. उनके कुछ डिमांड्स भी थे एंड इन स्पाइट ऑफ सम शॉर्ट कमिंग्स जो है उन्होंने भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स की वजह से भी या उसके बावजूद भी दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. एंड व्हाट वेयर दोज डिमांड्स? Their demands were, the first demand was higher wages यानी अधिक वेतन. दूसरा डिमांड था आपका प्रॉपर वर्किंग कंडीशन यानी बेहतर कार्य स्थितियाँ, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की स्थिति जो है उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो. तो दीज वेर द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स. नाउ व्हाट वेर द इवेंट्स? अब जो है उन्होंने किया क्या अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए? व्हाट दे डिड एंड हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. उनके क्या अपने तरीके थे? नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932. डॉक वर्कर्स मीन्स वो होते हैं द लेबर हु लोड्स एंड अनलोड्स वेसल इन पोर्ट. यानी इसको हिंदी में कहते हैं गोदी मजदूर. गोदी मजदूर. और ये वो मजदूर होते हैं जो एक बंदरगाह में जहाज़ों को लोड और अनलोड करते हैं, यानी उसमें माल चढ़ाते हैं और फिर माल उतारते हैं. तो दोज वर्कर्स आर कॉल्ड डॉक वर्कर्स. तो एंड डॉक वर्कर्स इन 1932 एंड इन 1930 thousands of workers in Chota Nagpur 10 mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott programs.
कहने का मतलब ये है कि जो 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई, और 1930 में क्या हुआ, छोटा नागपुर की टिन की जो कारखाने थे, टिन की जो फैक्ट्री थी, उनके हज़ारों मज़दूरों ने गांधी टोपी पहनकर, यानी उस पर गांधी का सिंबल था, गांधी जी का सिंबल था, उनकी टोपी जो है वो पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लेने लगे। सो इनका अपना तरीका था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को समर्थन देने का और उसमें हिस्सा लेने, भाग लेने का। सो अब था कि these are the points of the participation of workers, industrial workers in the civil disobedience movement. Now a second topic of in reference of the topic about the participation of different social group in the civil disobedience movement, यानी हमारा अगला टॉपिक जो है इस संदर्भ में कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार को, कौन से ऐसे सामाजिक समूह थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इस संदर्भ में अब हमारा दूसरा टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी महिलाओं का योगदान आंदोलन में। पहला आपका है, द फर्स्ट पॉइंट है, विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन द मूवमेंट। एंड मतलब जो महिलाएं जो थीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में, औरतों ने बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन लेफ्ट देयर होम्स एलिनेटेड टू लिसन टू गांधी जी, ऑफर्ड सत्याग्रह एंड वॉक्ड शोल्डर टू शोल्डर विथ मेन। यानी कहने का मतलब यह है कि पहला पॉइंट था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने या बड़ी संख्या में भाग लिया। दूसरा था कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। तो they had their own ways to participate in the movement. The second point about this topic is, next point, they participated in protest marches, manufactured salt and picket foreign cloth and liquor shops. Many women were arrested also. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग आई टोल्ड यू अबाउट द टर्म कि पिकेटिंग है कि डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक इन ग्रुप इन फ्रंट ऑफ एनी शॉप और ऑन द रोड। और बहुत सारी जो महिलाएं भी जो है जेल भी गईं और उनको अरेस्ट भी किया, हिरासत में भी लिया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट देयर पार्टिसिपेशन The next point is, while in urban areas, women of high caste families, यानी women महिलाओं का जो हर तरीके का वर्ग जो था, हर वर्ग जो है, हर क्लास जो है, इसमें इस आंदोलन में उसने अपनी भूमिका निभाई थी। So urban areas, women of high caste families participated in rural areas. They belonged to rich peasant households. And moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a holy duty of women. यानी what they thought, वो क्या कहना चाहती थी कि शहरी जो शहरी इलाकों में ज़्यादातर उच्च स्तर की महिलाएं शामिल थीं, यानी जो शहरी में वो हाई क्लास की जो औरतें थीं, वुमेन कैटेगरी थी, महिलाओं का जो वर्ग था, वो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। वो एक्टिव बहुत थी, वो सक्रिय भी बहुत थी। जबकि ग्रामीण यानी गांव के इलाकों में संपन्न किसानों की महिलाएं भी शामिल थीं, यानी जो गांव में जो संपन्न किसान थे, जो रिच पीजेंट थे, वो उनके घरों की महिलाएं जो थीं इस आंदोलन में वो बहुत सक्रिय थीं। और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना एक पवित्र काम लगने लगा था। यानी गांधी के जब आह्वान हुआ आंदोलन का और सत्याग्रह का या नमक यात्रा का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का या असहयोग आंदोलन का, इस तरह के जब आंदोलन शुरू हुए, गांधी जी ने आह्वान किया, तो औरतों को क्या लगा कि राष्ट्र की सेवा करना ही पवित्र काम है, एक पवित्र काम है राष्ट्र की सेवा करना, ये उनको लगने लगा था। सो दीज आर द points of the participation of the women in the civil disobedience movement. Civil disobedience movement. Children, this increased public role did not
proof that the position of women was better at that time. And also the Gandhiji was convinced that it was the first duty of the women to look after their children, to look after their houses, to look after their families, and also be good mothers and good wives. So for a long time the Congress was hesitating to give position in the authority within the organization, and also the Congress was not interested in their symbolic प्रेजेंस। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की सार्वजनिक भूमिका के बावजूद भी, इस तरह के योगदान के बावजूद भी जो है ये हम नहीं कह सकते थे कि उस समय, उस टाइम जो है, उस समय औरत महिलाओं की जो कंडीशन थी, जो पोजीशन थी, जो उनकी स्थिति थी वो सुधरी थी या अच्छी थी। तो और साथ में गांधी जी का ये मानना था कि बच्चे पालना, बच्चे देखना, घर देखना और चूल्हा चौका संभालना, परिवार देखना और एक अच्छी मदर बनना, एक अच्छी माँ बनना और अच्छी पत्नी बनना ही औरत का पहला और परम कर्तव्य होता है। तो ये बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस ने जो है वो औरतों को अपने संगठन में जो है वो जगह देने में हिचकिचा रही थी, और साथ ही साथ जो है उनको प्रतीकात्मक उपस्थिति देने में भी वो रुचि नहीं दिखा रही थी। तो वी हैव, सो चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन द of the topic, that how the different social groups have participated in the civil disobedience movement। और इस संदर्भ में हमने उन सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। तो वी हैव डिस्कस अबाउट कि वी हैव डिस्कस हाउ दे हैव पार्टिसिपेटेड एंड व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम एंड हु वेर द पार्टिसिपेंट्स एंड हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। यानी हमने पढ़ा कि हमने ये कि किस तरीके से जो है वो कौन से सामाजिक समूह थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेशन यानी भूमिका निभाई, और उन्होंने उनके लिए स्वराज के क्या माने थे। So children, we will stop here, and in our next topic we will study our next topic. So take care of yourself and goodbye.